નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં. આપની સાથે હું છું શિવાની. આજે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું સંઘર્ષથી સફળતાના સફરની વાત. ટાઇટલ જોઈને આપણે લાગતું હશે કે આજે આ શું એવી વાત હશે, પરંતુ આજે બે એવા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે વાત કરીશું કે જે ના માત્ર સામાજિક પહેલ પરંતુ એવી રીતે અન્ય મહિલાઓ, અન્ય એવી બાળકીઓ કે જેમને પ્રોત્સાહિત કરે છે આગળ વધવા માટે, ના માત્ર શિક્ષણ ક્ષેત્રે પરંતુ મહિલાઓએ પોતાની કારીગરી કઈ રીતે બતાવી, કઈ રીતે તેના થકી આગળ આવવું. અને જીવનમાં આપણા તમામના જીવનમાં સંઘર્ષ રહેલું છે, પરંતુ તે સંઘર્ષમાંથી આપણે શું શીખીએ છીએ તે મહત્વનું બનતું હોય છે. અને એવી જ એક વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરીશું કે જેમણે સંઘર્ષ તેમના જીવનમાં ભરપૂર રહ્યો, પરંતુ સંઘર્ષમાં તેમણે હાર ના માનતા આગળ વધ્યા, મહેનત કરી અને તેમની સાથે ઘણા એમની વ્યક્તિઓ જે છે તેમને જોડે લઈને આગળ ચાલ્યા. એવા કેમ્પેન વિશે વાત કરીશું કે જે સ્પેશિયલી ગર્લ ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન વિશે કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે કોચીથી શરૂ થઈને જેસલમેર પહોંચી 2026 જાન્યુઆરીમાં તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આ કેમ્પેનનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે દિલ માંગે મોર. એટલે આ કેમ્પેન થકી જે બાળકીઓ છે કે જે શિક્ષણથી વંચિત છે તેમને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરશે, જાગૃતતા ફેલાવવાનું કાર્ય કરશે અને જે તેમને ડોનેશન મળે છે તે બાળકીઓના એજ્યુકેશન પાછળ વપરાશે. અન્ય એવી વ્યક્તિ પાસેથી મળીશું કે જેમને MBE એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવી રહ્યો છે. MBE એવોર્ડ વિશે વાત કરીએ તો તે છે મેમ્બર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયર. એટલે કે MBE એવોર્ડ ખૂબ જ જાણીતા એવા ફેશન ડિઝાઇનર તેઓ છે અને તેમના વિશે વાત કરીએ તો વાતો પણ ઓછી પડે એટલી વાત છે, કારણ કે તેમને ઘણા એવા સેલિબ્રિટીઓ સાથે કામ કર્યું છે, ઘણા એવા રાજકારણીઓ સાથે કામ કર્યું છે. એટલે તેમની જે ડિઝાઇનિંગ કપડાં છે તે વિદેશોમાં એટલા પ્રચલિત છે કે આજે પણ તેમની જે ફેશન સ્ટાઇલ છે ખૂબસૂરત કે જેના ઓનર છે મણિ કોહલી, તેમના વિશે વાત કરીશું. સાથે માલા રસ્તોગી વિશે વાત કરીશું કે જેમણે આ કેમ્પેનની શરૂઆત કરી છે અને આ બંને વ્યક્તિ આ કેમ્પેન ચલાવી રહ્યા છે, તેમના વિશે વધુ વાત કરીએ. આપણી સાથે આ વિશેષ ચર્ચામાં જોડાઈ ચૂક્યા છે મણિ કોહલી કે જેઓ ફાઉન્ડર છે ખૂબસૂરત કલેક્શનમાંથી. મણિજી, સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમમાં. સાથે માલા રસ્તોગી જેઓ ફાઉન્ડર છે દિલ માંગે મોરના, આપનું પણ સ્વાગત છે માલાજી. वेलकम टू डे स्पेशल. मणि जी, जिस तरह से हम पहले आपके बारे में बात करेंगे कि आपके बारे में लोगों को बताइए कि क्या हो आप, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि स्ट्रगल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सबके लाइफ में. आपके पार्ट में भी बहुत ऐसा स्ट्रगल रहा होगा कि जिससे आपने आज ये जो सक्सेस के मुकाम पे पहुँचे हो. आपकी लाइफ के बारे में बताइए कि क्या ऐसे कौन से ऐसी मुश्किलें आपके लाइफ में आई और उसके बाद आपने सक्सेस आपके लाइफ में प्राप्त किया है. शिवानी, इट्स बीन अ वेरी वेरी स्ट्रगल जर्नी रही है हम लोगों की. थैंक यू सो मच गुजरात न्यूज़ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी जर्नी शेयर कर सके बहुत से लोगों के साथ, और ख़ास करके जो यंग एस्पायरिंग लड़कियां हैं जिन्हों को हम चाह रहे हैं कि हम भी, हमारे फादर ने बहुत सपोर्ट किया था एजुकेशन के लिए. ही वाज अ कर्नल इन द आर्मी और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किया था. एंड मैं नागरिक रही हूँ ब्रिटिश मतलब यूनाइटेड किंगडम की. 48 ईयर्स हो गए मुझे वहाँ पर रहते हुए. और मेरी ये 48 ईयर्स की बड़ी संघर्ष स्ट्रगल रही है. बिकॉज़ जब मैं वहाँ गई थी 18 साल की थी, 19 साल में मेरी पहली बेटी हुई है. और वहाँ पर जब मैं गई थी, शादी करके गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी लास्ट नहीं की. और क्योंकि वो लास्ट नहीं की, मेरा पहला प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने लिए किस तरह से एक लाइवलीहुड ढूंढ पाऊँ जिसमें मैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकूँ. उस टाइम एक था, फिर कुछ सालों में 2 हो गए, क्योंकि पेरेंट्स बड़े ट्रेडिशनल माइंडेड थे. उनको नहीं चाहिए था कि उनकी बेटी किसी तरह से भी अलग हो, डिवोर्स हो. 70s में बहुत ही डिफ़िकल्ट अपॉर्चुनिटी थी टू फर्स्ट हैव अ डिवोर्स एंड इट वाज शन्ड. सॉरी, मैं बीच में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती आती नहीं. So it was at that time to be accepted as a single woman was a challenge. फिर उसके बाद जो मेरे हक में आया था वो मेरी एजुकेशन थी. बिकॉज आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम लोरेटो कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट से मेरा कॉलेज एजुकेशन हुआ था. साउंड ग्राउंडिंग थी. पेरेंट्स ने बहुत डिसिप्लिन इन्फिल्ट्रेट किया था और उनको मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मैं किस मुसीबत में हूँ और क्या कर रही हूँ, और किसी से हेल्प भी नहीं चाह रही थी. तो मेरे को एक ज़रिया मिल गया जिसमें से मेरे बच्चे मैं अपने पेरेंट्स के साथ छोड़ के उनको समझा के कि मैं लेने आऊँगी जब मेरा पहला घर हो जाएगा, ये कारोबार शुरू किया. बिकॉज़ ये फैशन फ्लेयर था मेरे में. और उस टाइम पे मैंने एक कमी नोटिस की, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इसमें पैसा बन सकता है. एंड वो कैसे बनाया ये अलग बात है कि हमने हमारी फ्रेंड्स को बहुत थैंक यू कहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट की. कॉफ़ी शॉप्स होल्ड की, मैं गाड़ी में, बूथ में
10-15 जोड़े लेके जाती थी पहले, विच वर वेरी स्मार्ट कैजुअल, जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट का फ्यूजन था, क्योंकि हम वहाँ उस टाइम 70s में हर एशियन वुमन एक आइडेंटिटी ढूंढ रही थी और वो आइडेंटिटी उनको मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो इमिग्रेंट सोसाइटी में फंसी हुई थी, शाय थी, बाहर नहीं निकलती थी, जॉब्स तो खैर बहुत मुश्किल से, और एक मैं एंटरप्रेन्योर जिसको बहुत अपनी एम्बिशन डिज़ायर लेके निकली हुई थी। बहुत सराहा लोगों ने मुझे, मेरे 10 जोड़े बिके तो उसमें 100 भी आ गए, 100 के बाद 1000 भी आ गए, दुकान भी खोली। 1985 में मैंने पहली शॉप खोली। 1983 में मुझे लेबल मिला खूबसूरत कलेक्शन का, और पहला फैशन शो इंडिया टूरिज्म बोर्ड ने ही मेरे लिए किया था। 42,000 पीपल की एंट्री हुई थी मेरे शो में। और उसके लिए मैंने एक्चुअली बहुत से बच्चों को ही, क्योंकि उन दिनों में मॉडलिंग तो बहुत दूर की बात है, जब कपड़े ही नहीं मिलते थे रेडीमेड, तो मॉडलिंग तो बहुत दूर की बात है। माँ बाप से परमिशन लेके अपने लोकल स्कूल्स में जाके मैंने बच्चे चुने, उनसे इजाज़त लेके उनको ट्रेनिंग दी और उनकी कोरियोग्राफी की, फैशन शो किया जो 3 दिन लास्ट किया। अटेंडेंस माइंड ब्लोइंग थी। उसके बाद हमें फिर वीडियो प्रोजेक्ट्स मिल गए। मंजीत सिंह सिंगर थे उस टाइम, बहुत अच्छा उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एंड धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। स्कूल कॉलेजेस में, लोकल में उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप बच्चों को बताया करो अबाउट फैशन। उनके स्कूल से बच्चे भेजते थे मेरी दुकान में कपड़े फील करने के लिए। लोकल न्यूज़पेपर्स ने कवर्स करना शुरू कर दिया। उस टाइम ईस्टर्न आई वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और वो उन लोगों की तरह से, मतलब समझिए एक मेरे को बैकबोन मिलती गई। पैसे बहुत मुश्किल से ढूंढे। एक बैंक मैनेजर थे, इंग्लिश थे, उन्होंने मेरे को, जब मैं गई एक लोन मांगने के लिए बिजनेस कारोबार शुरू करने के लिए, उन्होंने मेरे से कोई कोलैटरल भी नहीं मांगा, मतलब कुछ मुझे रखना भी नहीं पड़ा। पर पता नहीं क्यों उनको मेरे में इतना विश्वास था। उन्होंने मेरे को पहले 1981-82 में 15,000 पाउंड्स का लोन मिलना बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो मैंने 15,000 बहुत जल्दी उतारे और मुकम्मल पूरा किया अपना दौर। फिर उसके बाद लाइफ अपॉर्चुनिटी में जुस्तजू तो रहा। बच्चे छोटे थे, घर बार भी नहीं था, वो भी बनाना था, बच्चों की परवरिश भी करनी थी। बड़ा मुश्किल माहौल में भी टचवुड ऊपर वाले की बहुत मेरे पे मेहर रही है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक पाथ बना के थोड़े से करते करते जोड़ के एक नाम बनाया। उस नाम के साथ शोहरत, पैसा भी आया, और मेहनत हमारी जो है सफलता में मशहूर होनी शुरू होगी। एंड बाय द ईयर ऑफ 2000 इट वाज बियॉन्ड प्रोपोर्शन। मतलब इतना बड़े लोग जुड़ने शुरू हो गए, इतने हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, फिल्म भी की बेंड इट लाइक बेकम, और उसके बाद और भी बहुत सी फिल्में की। और नाम, आपको पता है एक बार ये नाम इस्टेब्लिश हो जाए तो लोग आने जाते हैं। कारवां बहुत बढ़ गया था तब तक। एंड उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था कि जब शुरुआत की थी तब आपने सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक आप पहुंचेंगे, और जब आप पहुंच चुके हो तो बहुत सारे ऐसे लोगों का एफर्ट्स भी रहा होगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका खुद का जो एफर्ट्स है वो आज स्ट्रगल टू सक्सेस में जो डाइवर्ट हुआ है, उसके बारे में भी बहुत हम आगे भी बात करेंगे कि कैसा स्ट्रगल टू सक्सेस का स्टोरी रहा, और MBE अवार्ड भी आपको जो मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको वो अवार्ड मिल रहा है। और काबिल तारीफ़ है कि बहुत ऐसी महिलाएं होती है कि जिसको आगे बढ़ना होता है, फिर नहीं वो बढ़ पाती, बहुत सारे रीज़न भी होते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ना और कुछ करके दिखाना वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना होता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, वैसा आप कर रही हो। माला जी, आपके बारे में बताइए, सोशल वर्क आप करते हो, कहाँ से सोशल वर्क के साथ जुड़े और कैसा लग रहा है? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि लोगों को, दूसरे लोगों को हेल्प करने में बहुत अच्छा फील होता है, तो आप भी ऐसा सोशल वर्क करते हो, स्पेशल बच्चों को जो पढ़ाने का जो काम करते हो, वो जो सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों को शायद नहीं पढ़ा पाते। बहुत सारे रीज़न भी होते हैं कि पैसे की कमी होती है या फिर घर में से पढ़ाई की जो उनको परमिशन नहीं मिलती, पर फिर भी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरी कहानी बहुत अद्भुत कहते हैं है, क्योंकि ये शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर ने करी 1962 में। फिरोज़ाबाद जैसे शहर में उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खोला, बाल मंदिर की तरह खोला, टिन शेड के अंदर नीचे लड़कियों को बिठा के पढ़ाई स्टार्ट हुई।
धीरे 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 फिर वो स्कूल के बाद कॉलेज बना और फिर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना, और इस साल हमने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल डाला है। तो हमारे यहाँ टोटल में 3,500 लड़कियाँ पढ़ती हैं फिरोज़ाबाद में दाऊदियाल इंस्टीट्यूशंस में, और बिल्कुल शिक्षा फ्री देते हैं। कभी भी मेरे ग्रैंडफादर और फिर मेरे फादर ने शिक्षा को लेके कभी ये नहीं सोचा कि इससे बिज़नेस किया जाए। उनका मतलब था कि शिक्षा या एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए कि उसी से समाज आगे बढ़ सकता है। जब वीकेस्ट से वीकेस्ट सेक्शन की लड़कियों को आप शिक्षा दोगे, उससे समाज में जो बदलाव आएगा उसका लाभ उन लड़कियों तक नहीं रुकता, वो पूरे समाज में ही फैलता है। तो ये मेरे ग्रैंडफादर की सोच बहुत ही मतलब यूनिक और फार साइटेड कह लें, प्रोग्रेसिव कह लें, ये 1962 में थी। और उसके बाद मेरे फादर फिर वो भी गए, इंग्लैंड गए, पढ़ा के फिर वो वापस आए, और उन्होंने बिज़नेस करते थे, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ उन्होंने भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उनका क्या कहना चाहिए इंटरेस्ट था। जब उनका 2020 में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से मैंने ये काम संभाला, और मैं खुद हैरान हो गई देख के कि हमारे यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, 3,500 4,000 तक, और कहाँ से आती हैं, इतनी गरीबी से आती हैं। फिरोज़ाबाद अगर आप जानो तो चूड़ियों का शहर है, सुहाग नगरी कहते हैं इसको, और ग्लास वर्क बहुत होता है वहाँ का मशहूर। और हर लड़की पहले घर में चूड़ी का काम करती है, कुछ पैसे कमाती है अपनी फैमिली के लिए, और उसके बाद वो शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन के लिए आती है आगे। तो इसलिए आई ऑल्सो जेन्युइनली बिलीव कि ये लड़कियों कब तक चूड़ियों का काम करेंगी। हमको इनको इतना काबिल बनाना है कि जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एजुकेशन इनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। चलो माना कि ये गरीब घरों में पैदा हैं और ये इंग्लिश मीडियम जो एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है वो नहीं अफोर्ड कर सकती, बट एटलीस्ट माँ बाप के पास चॉइस होनी चाहिए कि हम इनको अच्छे एजुकेशन में भेजें। तो वही उसीलिए अब मैं बिल्कुल टोटली लगी हुई हूँ ये दिल मांगे मोर के थ्रू कि इनके लिए एक नया स्कूल खोलें जिनमें इनको वो सब चीज़ें मिले जो एक अच्छे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलती है। डिजिटल एजुकेशन मिले, योगा क्लासेस मिले, पब्लिक स्पीकिंग मिले, डिबेटिंग मिले, थिएटर मिले, ट्रैवल करने की वो टूरिंग मिले, मिड डे मील मिले, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब हम फ्री में देते हैं फ़िलहाल। आप ये मानिए कि हमारे यहाँ से आगरा है 30 किलोमीटर्स, आधा घंटे की दूरी है। जब मैंने 2020 में पहली बार ये लड़कियों से जाके जुड़ी और बातचीत करी, वो आगरा तक, वो इतनी गरीबी में पल रहे हैं कि वो आगरा तक ताजमहल तक नहीं देखने गए हुए थे। तो मुझे बहुत शौक़ लगा, और फिर मैंने सबसे पहले बसेस अरेंज करके इन सबको भेजा कि भाई आप लोग आगरा तो घूमो, आगरा तक तो पहुँचो, देखो तो सही कि तुम्हारे बैक साइड में तुम्हारे नज़दीक में कितना बड़ा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी हाँ, बनता है। बिल्कुल जी, और वो आप ज़रिया बने इन लड़कियों के कि जो कभी भी बाहर नहीं निकली है, जिसने पूरी जो दुनिया क्या है वो नहीं देखी, उसके आसपास की दुनिया कितनी खूबसूरत है वो नहीं देखा है, और आपने उससे परिचित करवाया कि दुनिया क्या है, वो देखे, समझे, आगे बढ़े और ऐसे जॉब गिवर बने, ना कि जॉब सीकर, वरना जॉब गिवर बने, खुद के पैरों पे खड़ी हो। ज़रूरी है कि आज की जो महिला है वो जो आगे बढ़ रही है, तमाम हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो ऐसे महिलाएं हैं उनको बहुत सारा ऐसा मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, और आपकी जैसी जो महिलाएं हैं वो अन्य लोगों को ऐसे प्रेरणा देती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ખાસ આપણે વાત એટલે ચર્ચામાં કરી રહ્યા છે કે ખૂબ જ સારી એવી મહિલાઓ છે કે જે આગળ વધવા માંગે છે, તેમના માટે એક ઉદાહરણ रूप છે। मणि जी, जिस हिसाब से हम लोग ये जो MBE अवार्ड की बात करें, बहुत कम लोगों को इधर इंडिया में पता होगा, लेकिन बताने चाहूँगी कि पद्मश्री जो अवार्ड होता है जो हमारे इंडिया में दिया जाता है, ऐसा ही अवार्ड आपको वहाँ दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है कि जब आपको MBE अवार्ड के लिए इनायत किया जा रहा है, और कैसा फील कर रहे हो आप? पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, कुछ टाइम लगा हमें इस बात को सीरियसली लेने में भी। जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आया कि हमें सिलेक्ट किया गया, तो वो थोड़ा सा हम हिल गए थे, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, इसलिए क्योंकि हमने नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में, जब हम इस दौर से निकले और जब ये शुरुआत की थी जर्नी, कि हम इस लायक होंगे कि हमें कुछ इस तरह का ऑनर दिया भी जाएगा ज़िंदगी में। क्योंकि हम एक
ज़िंदगी की लड़ाई कुछ और थी, घर बार बनाना था, बच्चों को बड़ा करना था। अकेली औरत के लिए भी मुश्किल है, अपना पूरा घर बार छोड़ के पराए मुल्क में बैठ के ये सब करना इज़ नॉट अ जोक। बहुत लोगों की बेस्ट विशेस चल रही थी साथ में, और बहुत लोगों की हेल्प भी चल रही थी, और दुआएं जो सबसे बड़ी मेरे साथ में चल रही थी वो थी जो लोग जिनको मेरा ख्याल में इतने सालों में मैंने काम दिया है, और उन लोगों के घर के चूल्हे शायद इसी कारोबार से चलें, और उन्हीं की दुआओं से मैं इतनी दूर तक आई हूँ। और ये चीज़ उन्होंने, मेरा ख्याल में ब्रिटिश सरकार ने रिसर्च करने के बाद देते हैं, ऐसे ये नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत रिसर्च की है, उन्होंने मेरे को बताया कि हमें 1 महीना लगेगा, जब 1 महीना पहले फ़ोन आया कि हम ये पूरी जो हमें सबमिशंस मिली हैं इनकी हम पहले रिसर्च करके ही आपको ये देंगे, आप पहले कुछ ऐलान नहीं कर सकते। तो हमें वो 4 हफ्ते बहुत मुश्किल इसलिए लगे क्योंकि हम सोच रहे थे हमने पता नहीं ऐसा किया क्या है, और ये क्या ढूंढेंगे, क्या मांगेंगे, क्या लेंगे। इतनी मतलब लाइफ को हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि हमें कोई देख भी रहा है। ये बोला गया कि आपको MBA अवार्ड मिल रहा है, हाँ। उस टाइम का एक्सप्रेशन आपके कैसे थे? क्योंकि आपका जो गोल था वो आगे बढ़ना था, और ये MBA अवार्ड का इनायत करना, उस टाइम आपका एक्सप्रेशन कैसा था जब आपको ये मालूम हुआ कि आपको वो अवार्ड इनायत करा जाएगा? इमोशनल। देखिए, इनाम सब लेते हैं, राइट? हमने भी लिए इनाम इससे पहले, इतनी बड़ी पदवी में नहीं पहुंचे थे। सॉरी। बहुत ऐसा देखा जा सकता है कि जो स्ट्रगल होता है, बहुत कम लोग होते हैं कि जो स्ट्रगल पे से कुछ सीखते हैं और सक्सेस को मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हम लोग ने देखे हैं कि जो स्ट्रगल में हार जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर आपके जैसे जो महिलाएं हैं कि जो स्ट्रगल को खुद के लाइफ का एक पार्ट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि जहां महिलाओं अन्य दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। माला जी, दिल मांगे मोर, ये नाम बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये नाम के पीछे की वजह क्या है, और क्या कहना चाहेंगे दिल मांगे मोर, और कैसी जर्नी, ये जर्नी का जो आपने फेस चुना है, जो कोची से लेके जैसलमेर तक चुना है, और वो भी ऑटो रिक्शा में। इट्स सच अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि ऑटो रिक्शा में इतना सारा ट्रैवल करना, बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलना भी होगा, कि बहुत सारे ऐसे गांव में जाना होगा कि जहां लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपकी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाओ, डोनेशन के बारे में समझाना होगा। क्या सोचा है इसके बारे में, क्योंकि अभी शुरुआत ही है उसके बारे में? तो ऐसा है, जब हमने अपने टीम का एक नाम चुनना था तो हमने सोचा कि क्या नाम चुने, तो ChatGPT तो बिल्कुल मास्टर इंजन है, उसमें डाला नेम्स फॉर रिक्शा राइड बॉलीवुड को लेके, तो उसमें आया ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिर हमने कहा ये नहीं सूटेबल। फिर आया 3 इडियट्स, तो हमने कहा नहीं, हम 3 इडियट्स से नहीं जाएंगे। फिर आया दिल मांगे मोर, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि जब हम लाइफ में उस जगह पहुंच जाते हैं जब हमारा दिल बिल्कुल फुल है, सफिशिएंट है और सेटिस्फाइड है, और उस पर फिर हम रुक जाते हैं क्योंकि हमने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर लिया, फैमिली सेटल्ड, वेल सेटल्ड है, खुशी में रह रही है। तब मैं चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, हम ही नहीं, पर सब लोगों का दिल को मांगना चाहिए कुछ और समाज के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है, होप है सिर्फ, जो अपनी लाइफ शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग जहाँ मकाम पे पहुँचे हैं अच्छी एजुकेशन की वजह से ही पहुँचे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप ने एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि हम लोगों को सबसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी। लेकिन ये जो लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, इनके माँ बाप के पास चॉइस ही नहीं है अच्छी एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं है। अच्छी एजुकेशन का मतलब एक्सपेंसिव एजुकेशन। अब वो जो बेचारा डेली वेज अर्नर है, जो फ्रूट बेचता है, मोमोज बेचता है, रिक्शा चलाता है, तो वो तो सोचता है कि मैं सबसे जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी पास में लोकल स्कूल है उसमें ही दाखिला करा दूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास भी, उनको भी चॉइस देनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। तो मेरा दिल ये कहता है कि सबके दिल में, सबका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जब अपना फुलफ़िल हो जाए अपना लाइफ का पर्पस, तो एक नए पर्पस के साथ उन बच्चों को पढ़ाओ जिन बच्चों के माँ बाप के पास चॉइस नहीं है, उनको अच्छी एजुकेशन दें। एजुकेशन बहुत मिल रही है, लेकिन अच्छी एजुकेशन में और जो नॉर्मल एजुकेशन इन गरीबों को मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो दूरी है ना,
जो जो एजुकेशन रही वेल्दी लोगों को मिलती है और गरीब लोगों को मिलती है, ये जो दूरी है इसको कम करना ही होगा। अगर हमको समाज को आगे को लेके जाना है तो ये दूरी ख़त्म करनी है, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। तो हम लोगों का तो दिल यही कहता है कि हर गरीब लड़की को, क्योंकि हम लोग गर्ल्स पे फोकस्ड हैं, मेरे ग्रैंडफादर और फादर टोटली गर्ल्स को करते थे, मे बी बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की के पास ऐसी एजुकेशन हो कि वो अपनी फैमिली को नहीं, अपनी कम्युनिटी को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे लेके चले। एक सवाल आप दोनों के लिए, सब हम लोग ने बात कर ली कि कैसे हम लोग ने आगे बढ़े और कैसे ये कैंपेन, पर आप दोनों कैसे मिले? वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप दोनों कैसे मिले, वो बताइए जी। तो हम दोनों एक ही बिजनेस करते थे, हम दोनों फैशन में ही थे, और हम दोनों की शुरुआत भी एक ही टाइम पे हुई। मेरी हुई 1988 में और मनी जी की थोड़ी सी पहले हुई। ये डिज़ाइनर की कैपेसिटी में इन्होंने काम किया। मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरी दुकान का नाम क्रिएशन था, वो भी इंग्लैंड में ही थी। मैं भी इंग्लैंड से ही आई हूँ, मैंने भी 30-40 साल वहीं बिताए हैं। बट आई वॉज मोर अ मर्चेंडाइजर, यहाँ से ले जाके वहाँ बेचना, और मैंने वो कुछ टाइम के लिए किया, 20-25 साल के लिए। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, पर हम लोग कंपटीशन में थे। राइवल्स कैंपेन के लिए कैसे साथ में आए आप लोग? हाँ। इसका श्रेय एक बहुत अच्छी हमारी कॉमन फ्रेंड है, वो भी फैशन रिलेटेड बैकग्राउंड से, वो भी गुजराती हैं। सो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। हाँ, उन्होंने कहा ये करो, और उन्होंने कहा ये ट्राई करो, थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट और बहुत कठिन जर्नी है, पर तुम दोनों मिलके कर लोगी। तो हमने ये फिर चलो ले तो लिया एडवेंचरस के साथ, और प्लान किया, और यहाँ तक और हम बहुत सफल हो रहे हैं इस जर्नी में। बहुत हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने हमको सपोर्ट किया, डोनेशंस भी मिल रहे हैं, नया स्कूल भी ज़रूर बनेगा। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम 2 हैं, और हमारे साथ एक हमारे शब्बीर भाई भी हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस काम को। और सबसे बड़ा श्रेय इस वक्त जाता है सोनल जोशी को, जो एडवोकेट हैं, जिनको मैं हमेशा सपोर्ट करती रही हूँ इन हर एम्बिशन एंड हर डिज़ायर टू गेट समवेयर। बहुत सालों से, बहुत करीबी से, 20 साल से ज़्यादा शायद, इनको मैं सपोर्ट करती रहती थी कि तुम खड़े होकर मैदान जंग में अपने लिए एक नाम बना सकती हो, और इसको तुम फॉलो करोगी, ये तुम्हारा गोल है और ये तुम्हें हासिल करना है। और वो शायद शक्ति जो मैंने अपने में पाई थी, इनको भी देती रहती हूँ इन लड़कियों को। और मुझे इतनी खुशी है कि वो आज इस मकाम में है कि शी स्टैंडिंग फॉर द बार काउंसिल इलेक्शंस, व्हिच इज ग्रेट फॉर हर। मुझसे शायद कोई प्राउड इस वक्त फील नहीं हो रहा होगा। और श्रेय है इस बात का कि ये सब एजुकेशन से आता है, कॉन्फिडेंस से आता है। इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, जब लोग आप में भरोसा करते हैं। जिंदगी में आपको कोई आप में भरोसा करने के लिए मिल जाए ना, तो आपकी एक लड़ाई, तो वो पहला कदम पूरा खत्म हो जाती है। ये मेंटेनेंस सस्टेनेंस बाद में आता है। चलिए, इसी के साथ बहुत अच्छी ये चर्चा रही और बहुत कुछ जानने को मिला, और मेन पर्पस ये जानने को मिला कि स्ट्रगल टू सक्सेस तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमको सक्सेस मिल जाती है तो हमारे पूर्ति हम लोग रखते हैं कि भी चलो हमें सक्सेस मिल चुकी है तो बहुत काफ़ी हमारे लिए, पर फिर आपने ये जो सोचा है कि हमारे साथ और जो दूसरे लोग हैं उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, वो बहुत अच्छी बड़ी बात है। और आपकी जैसे ही लोग सोचे और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें, ऐसा हम लोग रखते हैं। और होपफुली आपकी जो ये जर्नी है बहुत अच्छे से जाए, और जो एजुकेट का जो पर्पस से आपने ये जो यात्रा शुरू की है वो बहुत खूब अच्छे से समाप्त हो, और बहुत सारा अच्छा फीडबैक आपको मिले, उसके बदल भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल डे સ્પેશિયલમાં આજે વાત હતી કે જે આપણે સ્ટ્રગલ ટુ સક્સેસની વાત કરી, અને ખૂબ જ સારી એવી વાતો જાણવા મળી કે એક મહિલા તરીકે, એક સિંગલ વુમન તરીકે પણ કઈ રીતે જીવનમાં આગળ વધી શકાય છે, અને આપણા જીવનમાં સંઘર્ષ હોય છે, સંઘર્ષમાં આપણે હારવા કરતાં જો મહેનત ચાલુ રાખીશું, સક્સેસ સુધી પહોંચવા છતાં પણ આપણે અન્ય વ્યક્તિઓને કઈ રીતે આગળ વધારવા, એજ્યુકેશન જે સૌથી મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે, અને દરેક વ્યક્તિઓને એ જ નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાના બાળકોને એટલું ભણાવો કે તે અન્ય બાળકો માટે પણ પ્રેરણારૂપ સાબિત થાય, જે એક એક્ઝામ્પલ સેટ થાય કે તેમને પણ ભણવું જરૂરી છે। જીવનમાં જો આગળ વધવું હશે તો તમારે એજ્યુકેશન જરૂરી છે, અને એવા જ આ કેમ્પેન ચલાવી રહ્યા છે। આશા રાખીએ છીએ તેમનું આ કેમ્પેન ખૂબ જ સફળ રહે, સારું રહે, અને તેમનું જે આ કેમ્પેન છે તેમને ઘણા લોકોને એવો ફીડબેક પણ મળે। ડે સ્પેશિયલ આ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ, ફરી મળીશું નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો, નમસ્કાર।